पहला मुकाबला एक तरफ है पुंडीर क्लब कप्तान गाजियाबाद के गोलू साहब, तो दूसरी दिल्ली के हुडा साहब। स्पिन कॉल करेंगे गोलू गाजियाबाद। इट इज द कॉल बट इट इज टेल, यानी टॉस जीता है एफआई टाइटंस। क्या करना चाहेंगे सर आप? पिच के हिसाब का ऑपोजिशन टीम काफी ठीक लग रही है, आपकी भी टीम काफी कॉम्बिनेशन, चाहे वो दिल्ली के हो या फिर केरला के हो, काफी अच्छी टीम बन के आई है। पहला मुकाबले में ऑपोजिशन टीम को कितना तो रोकना चाहेंगे? थैंक यू सर। बल्लेबाजी स्कोर कितना था मैच? तो न्यू फ्रॉम द सेंटर टॉस जीता है एफआई टाइटंस ने किया पहले बॉल का फैसला। चलेंगे सीधा से कॉम्बॉक्स में। कॉम्बॉक्स में इंतजार कर रहे हैं आपका मिस्टर दुर्गोशील और साथ ही साथ सुरजीत दास। ओवर टू कॉम्बॉक्स। অনেক অনেক ধন্যবাদ রাজা। আরো একবার আপনাদের প্রত্যেককে স্বাগত মিরাট সদর বেঙ্গলি ক্রিকেট টুর্নামেন্ট। বৈষ্ণবী স্পোর্টস একাডেমি থেকে লাইভ আসবে সরাসরি আইস রকার্স ইউটিউব লাইভের মাধ্যমে। আমরা বাঙালি, কর্মসূত্রে বাংলা থেকে ১,৫০০ কিলোমিটার দূরে থাকলেও ক্রিকেটকে সাথে নিয়ে এগিয়ে যাওয়ার একটা আলাদা আবেগ থাকে, এবং সেই আবেগটা যদি কোথাও না কোথাও শুভদিন মহালয়ের দিনেই হয়, একটা বাড়তি প্রত্যাশা প্রত্যেকেরই থাকবে। তো সেই প্রত্যাশাকে সাথে নিয়ে ৮টা দলকে নিয়ে জার্নি আজকের সিজন 4 এর ডে 1 প্রথম দিনের প্রথম ম্যাচ। দুটো শক্তিধর প্রতিপক্ষ, পুন্ডির ক্লাব সিজন 2 উইনার টিম এবং অপরদিকে এফআই টাইটান্স সিজন 3 এর চ্যাম্পিয়ন দল। প্রথম ম্যাচ ইতিমধ্যে টস কমপ্লিট হয়েছে। এফআই টাইটান্স ক্যাপ্টেন অন দ্য টস ইলেক্টেড টু বোল ফার্স্ট। আর কেন আমরা বারবার বলি আমরা বিরাট কোহলির দেশের লোক, আমরা চেস করতে বিশ্বাস করি। তো শুরুতেই যদি আমরা চোখ রাখি দুই দলে কারা খেলছেন, টেনিস ক্রিকেটের তারকা, টেনিস ক্রিকেটের স্টার আমরা বলতেই পারি পুন্ডির ক্লাব, যে দলে গোলু, কামরান, বেছে নিচ্ছি কিছুটা যন্ত্রণা। পুন্ডির ক্লাব গৌরব লেফটি, কামরান, লোকেশ মিনা, গৌরব, শিবম লেফটি, সানু, আলিগড়, রাজ পাসওয়ান, বরুণ, বাসাল, ফেজ, কৃষ্ণা গাউলি, ওবি কেনি এবং অপরদিকে এফআই টাইটান্স 11 যে দলে ক্যাপ্টেন নবীন হুডা, নদীম ধনুরি, থমাস ডায়েস, ওসমান প্যাটেল, আকাশ জাহাঙ্গীর, বিজেন্দর বর্মা, নাইম সেসোডিয়া, এজাজ ম্যান্ড্রেলা, আসিক আলী, ইমাদিল্লু, মনীষ রাঠি। দুটো দল তারা প্রস্তুত একদম। গেম প্ল্যান কি হবে? একে অপরের ইষ্ট দেবতাকে স্মরণ করছেন, হাইডেলটা কমপ্লিট করলেন। টস পেপারে গেছে এফআই টাইটান্স, টসে জিতে সিদ্ধান্ত বোলিং এর। আরো একবার আপনাদের প্রত্যেককে স্বাগত। কর্মসূত্রে বাংলা থেকে ১,৫০০ কিলোমিটার দূরে, তবে ক্রিকেটকে সাথে নিয়ে এগিয়ে যাওয়ার যে বাড়তি একটা আবেগ, সেটার জন্য স্পেশাল থ্যাঙ্কস জানাচ্ছি আমরা মিরাট সদর বেঙ্গল ক্রিকেট টুর্নামেন্ট, অল দ্য অর্গানাইজার। লাইভ আসবে দেশ দুনিয়ার প্রত্যেকটা প্রান্ত থেকে সরাসরি আইস রকার্স ইউটিউব লাইভের মাধ্যমে। জুড়ে থাকুন আমাদের সঙ্গে, লাইক করতে থাকুন, শেয়ার করতে থাকুন, সাবস্ক্রাইব করতে থাকুন এবং বেল আইকন দাবাতে ভুলবেন না। প্রথম ম্যাচ গ্রুপে একদিকে পুন্ডির ক্লাব, অপরদিকে এফআই টাইটান্স। প্রত্যেকে প্রস্তুত, একটা হাই ভোল্টেজ ম্যাচ
সেখানে সেনার লড়াই, ইঞ্চিতে ইঞ্চিতে লড়াই। সিজন 2 চ্যাম্পিয়ন দল পন্ডিত ক্লাব, সিজন 3 চ্যাম্পিয়ন দল এফআই টাইটান্স। সিজন 4 এ কারা হবে চ্যাম্পিয়ন? সব প্রশ্নের উত্তর আসবে, অপেক্ষা করতে থাকুন আজ এবং আগামীকাল। দিনের প্রথম ম্যাচ জার্নি, বেস্ট ভার্সাস বেস্ট। কে কার কতটা টেস্ট নিতে পারবেন সেটা সবাই বলবে। ইতিমধ্যে দুই গোড়াপত্তনকারী ব্যাটার প্রস্তুত হচ্ছেন এবং শারীরিক জড়তা মাঠের মধ্যে ফিল্ডিং সাইড এফআই টাইটান্স। আসলে সকালের দিকে একটা শারীরিক জড়তা থাকে, কসরতের মধ্য দিয়ে সেই জড়তাটা কাটিয়ে নিতে চাইছেন যেখানে এফআই টাইটান্স। একবার বাংলা থেকে 2000 কিলোমিটার দূরে কর্মসূত্রে, তবে ক্রিকেটকে কর্মের সাথে জুড়ে দিয়েছেন। মিরাট সদর বেঙ্গলি ক্রিকেট টুর্নামেন্ট, অল দ্য অর্গানাইজার মিস্টার মোহন মিশ্রা অ্যান্ড এন্টায়ার টিম। তাদের পুরো টিম যেভাবে অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন। বৈষ্ণবী স্পোর্টস একাডেমি থেকে সরাসরি লাইভ আসছে সবুজ ময়দান। ম্যাচ অফিসিয়াল একদিকে প্রসেনজিৎ দত্ত এবং অপরদিকে শ্রীকান্ত বেহরা। তৃতীয় আম্পায়ারের ভূমিকায় থাকবেন, টিভি আম্পায়ারের ভূমিকায় রবিউল ইসলাম। মিস্টার খান সাহেব, সময়ের অপেক্ষা, লড়াই ইঞ্চিতে ইঞ্চিতে। দুই সূচনাকারী ব্যাটার, একদিকে রাজ পাসওয়ান, অপরদিকে অমিকেনি। 22 গজে প্রবেশ, মহারণ, যুদ্ধক্ষেত্রে প্রত্যেকে তৎপর। সেরার সাথে সেরার লড়াই, বেস্ট ভার্সাস বেস্ট। নির্ধারিত 8 ওভারের ম্যাচ, সিজন 4 প্রথম ম্যাচ, প্রথম দিনের প্রথম ম্যাচ। রুদ্র খরচল একটা পরিবেশ, সবকিছুকে সাথে নিয়ে এগিয়ে যেতে হবে। পরিবেশ আমরা বলতেই পারি। রুদ্র করজ্জ্বল পরিবেশ, সবুজ গালিচা পাতা রয়েছে। দুর্দান্ত একটা উইকেট, স্পোর্টিং উইকেট। প্রথম দুটো ওভার যেখান থেকে ম্যান্ডেটরি পাওয়ার প্লে,
এবং বোলিং মার্কে ইনফর্ম বোলার আমরা বলতেই পারি আসিক আলীকে আনা হয়েছে। কেরালা থেকে বিলং করেন, মুভমেন্ট করাতে পারেন, সেটা অস্ত্র যার কাটার। আজকে আরো একবার একটা প্রত্যাশা থাকবে দলের। তবে অপরদিকে দুই সূচনাকারী ব্যাটার যাদের উপর বাড়তি প্রত্যাশা টিম পুন্ডির ক্লাব, রাজ পাসওয়ান বাংলা থেকে বিলং করেন, ওয়েস্ট বেঙ্গল থেকে, এবং অপরদিকে অমি কেনি, যার চওড়া ব্যাটের দিকে তাকিয়ে থাকবে দল। সো প্রত্যেকে আমরা প্রস্তুত। হাই ভোল্টেজ একটা অ্যাটমসফিয়ার, হাই ভোল্টেজ একটা ম্যাচ। মিরাট সদর বেঙ্গলি ক্রিকেট টুর্নামেন্ট, প্রথম ম্যাচ, প্রথম বল। আসিক আলী টু রাজ পাসওয়ান। খাটুলেন্থের বল অফ স্ট্যাম্পের উপরে কাট করার চেষ্টা, কভার পয়েন্টে ফিল্ডসম্যান ছিলেন, বল ধরে ফেরত পাঠাবেন, রান আসবে না। আসলে শুরুর দিকে উইকেটে একটু থিতু হতে হবে রাজ পাসওয়ান, সেটা দেখে নিলেন। প্রথম বলটা পড়ার পরে একটু মুভমেন্ট ছিল, লেগ কাটারের মতো আসিক আলী, তার সেরা অস্ত্র এটাই। কমেন্ট্রি বক্স এন্ড থেকে দৌড় শুরু করবেন। এখান থেকে কাট করেছেন, অরক্ষিত জায়গা কি না, বাঁ দিকে সরে গেলেন। পয়েন্ট অঞ্চলে তৎপর ছিলেন, তবে দুই ব্যাটার তারাও তৎপর ছিলেন, দ্রুততার সঙ্গে জায়গা বদল করলেন। একটা রানের জন্য জায়গা বদল, অ্যাকাউন্টটা স্টার্ট করলেন রাজ পাসওয়ান। প্রথম রানটা এলো রাজের ব্যাট থেকে, লেফটি রাইটি কম্বিনেশন নিয়ে ফিল্ড সেট আপ। দুজন ফিল্ডার যেখানে সার্কেলের বাইরে, আমরা যদি দেখি একেবারে ডিপ এক্সট্রা কভার অমি কেনির এগেনস্টে। এগারোটা বেজে 40 মিনিটে ম্যাচ স্টার্ট হয়েছে। ফিল্ড সেট আপ আমরা যেটা বলছিলাম, এক্সট্রা কভার এবং মিড উইকেটে একেবারে বাউন্ডারি লাইনে। অমি বাইরের দিকের কিনারা ছিল, গালি অঞ্চলে ফিল্ডসম্যান তৎপর, আরো একটা রান। মিডওয়েটি পাওয়ার প্লে, প্রথম দুটো ওভার কাজে লাগাতে চাইছেন, তবে আসিক আলী এখনো পর্যন্ত সেভাবে রুম দেননি রাজ পাসওয়ান এবং অমি কেনিকে। রান সংখ্যা প্রথম ওভারে খেলা চলমান 2। এখান থেকে কাট করেছেন, অরক্ষিত জায়গা, সবুজ মাঠের বুক চিড়ে প্রথম বাউন্ডারি রাজ পাসওয়ানের ব্যাট থেকে। রুম ছিল এবং জায়গা বানিয়েছেন দুই ফিল্ডারের মাঝখান থেকে। প্রথম বড় শট রাজ পাসওয়ানের ব্যাট থেকে। এক লাফে রান সংখ্যা 6 যাবে, তবে ট্রাই করছিলেন প্রথম দুটো শট যেভাবে একই জায়গা থেকে রাজ পাসওয়ান চেষ্টা করেছিলেন অফ স্ট্যাম্পের ওপরে কাট করার, তবে এক্ষেত্রে সফল বলতেই পারি আমরা। একই জায়গা থেকে আবারও একই ধরনের খেলার শট চেষ্টা ছিল, তবে এক্ষেত্রে আসিক আলী কামব্যাক করে গেলেন। একদম একটা যদি রাজ পাসওয়ানের নামে লেখা থাকে, পরেরটা অবশ্যই আসিক আলী তার নামে লেখা থাকবে। ইনফর্ম, একদিকে রাজ পাসওয়ান যেভাবে ফর্মে রয়েছেন, অপরদিকে আসিক আলী, তার কথাও বলতে হয়। ইনফর্ম বোলার। এখান থেকে সোজা ব্যাটে একটু রিস্ক ছিল, ডেঞ্জার জোন রাজের জন্য, তবে কমপ্লিট করবেন। মিড অফে ফিল্ডসম্যান তৎপর ছিলেন, তবে একটু যদি আরো তৎপর হতে পারতেন, উইকেটের থ্রো যদি আসতে পারতো, হয়তো রিস্ক ছিল রাজ পাসওয়ানের জন্য। তবে যাই হোক, প্রথম ওভারে খেলা শেষ। এক ওভার থেকে রান সংখ্যা টিম পন্ডিত ক্লাব তাদের সংগৃহীত রান সংখ্যা 7, কোনো উইকেট আসেনি। দুর্দান্ত একটা অ্যাটমসফিয়ার, আমরা বারবার বলছি ক্রিকেটের জন্য যে অ্যাটমসফিয়ারটা প্রয়োজন, যে আদর্শ পরিবেশটা প্রয়োজন, সেটা আপনাদের সামনে তুলে ধরেছে মোহন মিশ্রা অ্যান্ড দেয়ার এন্টায়ার ব্রিগেড। মিরাট সদর বেঙ্গলি ক্রিকেট টুর্নামেন্ট সিজন 4 ডে 1 গ্রুপের প্রথম ম্যাচ। দুটো দল তারা প্রস্তুত, একদম প্রথম ওভারটা ইতিমধ্যে কমপ্লিট হয়েছে।
হ্যালো 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 প্রথম ওভার এখনো পর্যন্ত সফল বলতেই হবে। দ্বিতীয় ওভারের জন্য বোলিং মার্কে মনীষ রাঠি। দুটো দল কেন আমরা বারবার বলছিলাম একদম একে অপরকে টেক্কা দেওয়ার মতো দুটো দল, বেস্ট ভার্সাস বেস্ট। মনীষ রাঠি দুই প্রান্ত থেকে দৌড় শুরু করবেন কমেন্ট্রি বক্স থেকে, তার কোটার প্রথম ওভার এটা। এক্ষেত্রে রাজ পাসওয়ান এবং হাওয়ার সঙ্গে কথা বলতে বলতে বল যাবে কাউ কর্নারের উপর থেকে, প্রথম ওভার বাউন্ডারি ফ্রম রাজ পাসওয়ান। হ্যালো 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 চেক হ্যালো হ্যালো রাজের ব্যাটকে কত সময় তুমি থমকে রাখবে? এখান থেকে শরীর থেকে অনেকটা দূরে অ্যাওয়ে ফ্রম দ্য বডি খেলার চেষ্টা, ফুটওয়ার্ক ছিল না, উইকেট আসবে। রাজ পাসওয়ান দ্য বিগ ম্যান ডিপার্টস, উইকেট নাম্বার 1, প্রথম উইকেট। একটা বাউন্ডারি এবং একটা ওভার বাউন্ডারি সাহস করছে রাজ পাসওয়ান, তিনি ফিরছেন ডাগ আউটে। 171 স্ট্রাইক রেট, এই হারে তার ব্যক্তিগত রান সংখ্যা 7 বল থেকে 12। নতুন ব্যাটার দ্য ম্যান ফ্রম রাজস্থান লোকেশ মিনা, মিনা সাহেব এসছেন। তার চওড়া ব্যাটের দিকে নাম্বার 3-এ তাকে আনা হয়েছে ওমি কেনির সাথে জুটি বাঁধার জন্য। আর যারা অন্তত পক্ষে টেনিস ক্রিকেটের খবর রাখেন এটা বলার অপেক্ষা রাখে না, লোকেশ মিনার বিধ্বংসী ফর্ম, বিধ্বংসী ব্যাটিং দেখার জন্য প্রভু মানুষ তারা ক্রিকেট ময়দানে ভিড় জমান। আজকে হয়তো শুরুর দিকে একটু দর্শক সংখ্যা কম, তবে সময় যত বাড়বে মানুষের ঢল বৈষ্ণবী স্পোর্টস একাডেমিতে। মনীষ রাঠি উইকেট প্রাপ্তি, রাজ পাসওয়ানের মতো ব্যাটারকে তিনি ডাগ আউটে ফিরিয়েছেন। রাঠি এখান থেকে হেলিকপ্টার হাওয়ায় আরো একটা উইকেট, ব্যাক টু ব্যাক উইকেট মনীষ রাঠি ইন ফর্ম। কোন রকম ভুলচুক করেননি সিসোডিয়া, এলেন এবং ফিরলেন লোকেশ মিনা। তবে প্রত্যাশা পূরণে ব্যর্থ বলতেই হবে লোকেশ মিনা। যে প্রত্যাশা ছিল তার প্রতি নাম্বার 3-এ তাকে রাজ পাসওয়ানে ফিরে যাওয়ার পরে আনা হয়েছিল, তবে প্রথম বল অফ স্ট্যাম্পের ওপরে একটা ডিপ এক্সট্রা কভারের জোনে খেলতে চেয়েছিলেন, ওপরের দিকে স্টপেজ এবং যেখানে কভার পয়েন্টে কোনো রকম ভুলচুক করেননি নাইম সিসোডিয়া। একটা সহজ ক্যাচ, ফিরে যেতে হলো, দ্বিতীয় উইকেটের পতন ঘটল। নতুন ব্যাটার যার আগমন 22 গজে কৃষ্ণা গাউলি। আসলে বারবার যখন আমরা বিপদে পড়ি যেভাবে কৃষ্ণাকে আমরা স্মরণ করি, তবে এক্ষেত্রেও কৃষ্ণাকে স্মরণ করা হয়েছে। তবে প্রথম হ্যাট্রিক টুর্নামেন্টের সিজন 4-এর মনীষ রাঠি ইজ অন হ্যাট্রিক। হ্যাট্রিকের সামনে দাঁড়িয়ে হ্যাট্রিক আসবে কি? এখান থেকে দেখে শুনে দুর্দান্ত ভাবে মিডলিংটা করেছেন ডিপ এক্সট্রা কভারে ওসমান প্যাটেল। যতক্ষণে ফেরত পাঠাবেন একটা রানের জন্য, তবে খারাপ থ্রো বলতেই হবে। তবে ব্যাকআপ সত্যি চোখে পড়ার মতো দুর্দান্ত একটা ব্যাকআপ, একটা রান একদম দেখে শুনে। যখন হ্যাট্রিক বল ছিল সামনের পাটাকে সামনে নিয়ে এলেন, ফ্রন্ট ফুটে একটা ড্রাইভ যেখান থেকে অরক্ষিত ছিল শর্ট এক্সট্রা কভারের জোন, ডিপ
ডিপ এক্সট্রা কভারে প্রোটেকশন রাখা হয়েছে। ম্যান্ডেটরি পাওয়ার প্লে শেষ ওভার, যেখানে ফিল্ড করছিলেন ওসমান প্যাটেল। দ্বিতীয় ওভারে খেলা চলমান। এখান থেকে কাট করার চেষ্টা, দুর্দান্ত একটা ডেলিভারি, উইকেটকে যেন চুমু খেয়ে বল চলে গেল নাদিমের পাশে। নাদিম ধানুর উইকেটের পেছনে আরেক রাজস্থানের খেলোয়াড়। তবে প্রচুর প্রচুর ভিন রাজ্য থেকে, রাজ্যের বাইরে থেকে প্রচুর খেলোয়াড়। অল ওভার ইন্ডিয়া টেনিস ক্রিকেট, সর্বভারতীয় টেনিস ক্রিকেটের তারকা খেলোয়াড় তারা আজকের এবং আগামীকাল একে অপরের সেরাটা উজাড় করবেন। রাঠি এখান থেকে ফুল টস, ট্রিটমেন্ট, ওয়ান ড্রপ, আউট অফ দি পার্ক। বল যাবে মাঠের বাইরে, দিয়ে যাবে 4টে রান। যে বলে যা প্রাপ্য বুঝিয়ে দিলেন এবং 4টে রান দলের অ্যাকাউন্টে জমা দিয়ে গেলেন। দ্বিতীয় ওভারে খেলা শেষ। 2 ওভার থেকে রান সংখ্যা সর্বসাকুল্যে 18। প্রথম সারি 2 ব্যাটার তারা ডাগ আউটে। রাজ পাসওয়ান 12 রান করে ডাগ আউটে ফিরেছেন, অপরদিকে লোকেশ মিনা 1 বল থেকে কোনো রান পাননি। 2 ওভার 18 রান, 2 উইকেট। দ্বিতীয় ওভার কমপ্লিট হওয়ার পরে তৃতীয় ওভারের জন্য আলীকে আনা হয়েছে আরো একবার। আসিক আলী অফ স্ট্যাম্পের ওপরে অনেকটা রুম ছিল, জায়গা বানিয়ে খেলার চেষ্টা কৃষ্ণা গাউলি। ব্যাটিং সাইড রিভিউ নেওয়া হয়েছে সম্ভবত হোয়াইট বলের জন্য। তৃতীয় আম্পায়ার তিনি প্রস্তুত রয়েছেন। অনেকটা জায়গা ছিল, সময় ছিল, অফ স্ট্যাম্পের ওপরে পাঞ্চ করার চেষ্টা করেছিলেন কৃষ্ণা। কনফার্মেশন কি আসছে? ইটস এ ফেয়ার ডেলিভারি। কনফার্মেশন চলে এলো। সো ব্যাটিং সাইড রিভিউ। ব্যাটিং সাইড রিভিউ, তারা রিভিউটা হারালো। একটা করে রিভিউ প্রত্যেকটা ইনিংসে। তবে এই ক্ষেত্রে আসিক আলীর প্রশংসা করতেই হবে, যেভাবে মুভমেন্ট আদায় করছেন 22 গজ থেকে। টপেজ হাওয়ায় ফিল্ডসম্যান ছুটছেন, তবে এত সহজে পৌঁছতে পারলেন না। তা আসলে আমরা যেটা বারবার বলি ক্রিকেট ময়দানে, তুমি সামনের দিকে যত দ্রুত গিয়ে ক্যাচটা নিতে পারবে, যখন তোমার পেছনের দিকে বিহাইন্ড বল এতটা সোজা হবে না তোমার জন্য। শারীরিক ভারসাম্য রেখে পেছনের দিকে গিয়ে ক্যাচটা তালুবন্দি করা একটু হলেও তোমার জন্য সেটা কষ্টসাধ্য হবে। তবে যাই হোক, একটা রানের জন্য জায়গা বদল, 2 ব্যাটার। স্কোর কার্ড বড় শট আসছে না, তুমি স্কোর কার্ডটা কন্টিনিউ করলে। আশিক আলী রুম দিচ্ছেন না। এখান থেকে আরো একবার অ্যাক্রস দ্য লাইন খেলার চেষ্টা, তবে অনেকটা অফ স্ট্যাম্পের বাইরে। মিড অফে ফিল্ডসম্যান ছিলেন, একটা রানের জন্য জায়গা বদল। অবলীলায় হাঁটি হাঁটি পাপা রান নিচ্ছি, দেখে যা। আচ্ছা, নেক্সট ম্যাচের জন্য দুটো টিম প্রস্তুত হয়ে যাবেন। প্লেয়ার লিস্টটা সাবমিট করতে হবে আজকে দিনে। নেক্সট ম্যাচ নাম্বার 2। দুটো টিমকে আমরা অনুরোধ করছি বারবার প্রস্তুত হয়ে যাবেন। अगला मुकाबला 2 टीम जल्द से जल्द तैयारी कर लीजिए। আসিক আলী এখান থেকে আরো একবার হাওয়ায়, থমাস ডায়াস কোন রকম ভুলচুক করবেন না। উইকেট আসিক আলীর নামের পাশে। উইকেট টেকার কেন তাকে বারবার বলা হয় এবং কেন তিনি এই মুহূর্তে কেরালা থেকে ভারতবর্ষের প্রত্যেকটা মাঠে ময়দানে নিজের নামের প্রতি সুবিচার করছেন, আরো একবার প্রুভ করে গেলেন, আরো একবার প্রমাণ দিয়ে গেলেন। আসিক আলী উইকেট টেকার। নতুন ব্যাটার সানু আলিগড়।
প্রথম সারির লব্ধ প্রতিষ্ঠিত 3 ব্যাটার ডাগআউটে ফেরার পরে নির্ভরতা দিতেই হবে। তবে ওমি কেনি একদিক থেকে তিনি এখনো পর্যন্ত 22 গজে রয়েছেন। তবে জুটি বাঁধবেন নতুন ব্যাটার সানু আলিগড়। তার চওড়া ব্যাটের দিকে তাকিয়ে দল ব্যাটকে কথা বলাতে হবে, রান আনতে হবে, একটা ভদ্রস্থ স্কোরে পৌঁছে দিতে হবে দলকে। সানু এখান থেকে ভেতরের দিকে ইন কাটার পুরোপুরি পরাস্ত, কাট করতে চেয়েছিলেন, অল্পের জন্য মিস করলো। এজ হতেই পারতো নাদিম, সেটাই তার শারীরিক পরিভাষা সেটাই বলছে, যে শারীরিক পরিভাষা শেষ মুহূর্তে মাথায় হাত দিয়ে বসছিলেন যে নাদিম, যে শেষ মুহূর্তে একটা খোঁচা লাগতেই পারতো, সেক্ষেত্রে সানু আলিগড়কে হয়তো ফিরতে হতে পারতো। যাই হোক, তৃতীয় ওভারে খেলা চলমান। আসিক আলী এক্ষেত্রে রুম ছিল, কাট করেছেন, পয়েন্ট অঞ্চলে ফিল্ডসম্যান তৎপর সার্কেলের মধ্যে। তৃতীয় ওভারে খেলা শেষ। ওভার নাম্বার 3 comes to an end after completion of third over, 20 लॉस ऑफ 3 विकेट। 3 ओवर की समाप्ति, 3 ओवर की समाप्ति के बाद 20 3 विकेट की नुकसान पर তৃতীয় ওভারে খেলা শেষ। এই ওভারটা আসিক আলী দুর্দান্ত একটা ওভার, মাত্র 2টো রান এসছে এই ওভার থেকে এবং একটা মূল্যবান উইকেট তার এই ওভারে। তৃতীয় ওভারে খেলা শেষ। চতুর্থ ওভারের জন্য বোলিং মার্কে কাকে আনা হচ্ছে? ভ্যারিয়েশনের জন্য বৈচিত্র্য। কেন বারবার আমরা বলি একটা বোলার তখনই সফল যত বেশি বৈচিত্র্য থাকবে। আসিক আলী ভ্যারিয়েশন, এবং চতুর্থ ওভারের জন্য ইমাদ ইল্লুকে আনা হয়েছে। এখান থেকে অনেকটা বাইরে হোয়াইট বলে কনফার্মেশন আসবে। দুটো বাহুর প্রসারণ, সীমান অতিরিক্তর খাতায় একটা রান, সব মিলিয়ে রান সংখ্যা পৌঁছে যাবে 21। ইমাদিল্লুকে আনা হয়েছে। টুর্নামেন্টের প্রথম ম্যাচ, সিজন 4। এখান থেকে স্টেপ আউট, হাফ চান্স চেষ্টা করেছিলেন, শেষ মুহূর্তে বলের কাছে পৌঁছতে পারেননি। শরীরটাকে বলের লাইনে নিয়ে আসেন, যেখান থেকে বলের গতিটা রোধ করেন। তবে তার ফাঁকে অবলীলায় একটা রান, 2 ব্যাটার দ্রুততার সঙ্গে জায়গা বদল করলেন। তবে এখান থেকে গিয়ারটা বদল করতেই হবে তোমাকে। 8 ওভারের ম্যাচ, লিমিটেড ওভার ফরম্যাট, একটা ফাইটিং টোটাল পৌঁছতে গেলে। তবে অপরদিকে বোলিং লাইন আপ সত্যি স্বপ্নের বোলিং লাইন আপ। জায়গা ছিল, জায়গা বানিয়েছেন, অরক্ষিত জোন, বল যাবে মাঠের বাইরে। শর্ট অফ লেন্থ, খাটো লেন্থের বল, স্কোয়ার লেগের ওপর থেকে দৃষ্টিনন্দন ওভার বাউন্ডারি। সানু আলিগড় বিজেন্দর বর্মা ওয়াইড স্কোয়ার লেগেছিলেন, অনেকটা দূরে ছিল, তার থেকে চেষ্টা করেছিলেন শেষ মুহূর্তে, তবে পৌঁছতে পারেননি। ফিল্ডিং এর সেটআপ অনের দিকে যদি আমরা দেখি, ওয়াইড স্কোয়ার লেগ। তবে এক্ষেত্রে আরো একবার অরক্ষিত জোন, এক্ষেত্রে 1 ড্রপ আউট অফ দ্য পার্ক। একইভাবে দুটো বল, গত বলটা যেখানে ওভার বাউন্ডারি এসছে, এটা বাউন্ডারির জন্য পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। একটু রুম দিচ্ছেন, খাটো লেন্থের বল, যে দুটো বল অবলীলায় কাজে লাগালেন। রানের গতি, আমরা যেটা বলছিলাম, একটু গতি আনতেই হবে, গিয়ারের অদবদল, গিয়ারটা বদলাতে হবে, সেই গিয়ার বদলেছেন সানু আলিগড়।
ফিল্ড সেটআপ যেটা আমরা বলছিলাম, যে জায়গা থেকে বাউন্ডারি ওভার বাউন্ডারি এসছে সেই জায়গায় ফিল্ডসম্যানকে আনা হয়েছে। অনের দিকে ব্যাকওয়ার্ড স্কোয়ার লেগ, ওয়াইড স্কোয়ার লেগ, মিড উইকেট এবং সার্কেলের মধ্যে মিড অন। অনের দিকে দুজন বাউন্ডারি লাইনে, অ্যাক্রস দ্য লাইন আরা ব্যাটে, শানিত ব্যাট, চকিত চুম্বন, হাই অ্যান্ড হ্যান্ডসাম 6। চতুর্থ ওভারে খেলা চলমান। তবে এই ওভারটা যেভাবে দাপট এখনো পর্যন্ত দাপটের সাথে ব্যাট করছেন, দুটো ওভার বাউন্ডারি, একটা বাউন্ডারি সানি আলিগড়ের ব্যাট থেকে, তার চওড়া ব্যাট। লাইভ আসছে দেশ দুনিয়ার প্রত্যেকটা প্রান্ত, লাইভ এন্ড এক্সক্লুসিভ আয়ুষ রকার্স ইউটিউব চ্যানেলের মাধ্যমে। জুড়ে থাকুন আমাদের সাথে। ইমাদ ফুল টস, ওয়ান্স অ্যাগেন ওয়ান স্পোর্টস, আরো একটা জুড়ে দিন স্কোরবোর্ডে। রান আসছে চলমান নদীর প্রবহমান স্রোতের মতো, যে কারণে ব্যাট হাতে শানু আলিগড়কে পাঠানো হয়েছিল। নামের প্রতি সুবিচার, আন্ডার প্রেসার, একটা ক্যামিও ইনিংস এখনো পর্যন্ত। 6 বল থেকে 22 রানে ব্যাট করছেন শানু, 3-3টে ওভার বাউন্ডারি তার ইনিংসে। ব্যাটক শট, ঘটনা টেক, তামাশা দেখ। হাঁটু গেড়ে বসে অবলীলায় বলকে আউট অফ দ্য পার্ক, যেন জায়গা দিচ্ছেন না উইকেটে থিতু হতে ইমাদ ইল্লুকে দাপটের সাথে। সো 50 কামস আপ ফর টিম পুন্ডির ক্লাব। যে দাপটটা কন্টিনিউ ছিল প্রথম 3টে ওভার, তবে এই ওভার থেকে সেই দাপটটা ফিরিয়ে এনেছেন এবং দলকে একটা শক্ত ভিতের ওপর দাঁড় করিয়েছেন। প্রথম 4 ওভারের খেলা শেষ, 4 ওভার থেকে সংগৃহীত রান সর্বসাকুল্যে 50, টিম পুন্ডির ক্লাব। চতুর্থ ওভারে খেলা শেষ। আরো একবার আপনাদের প্রত্যেককে বৈষ্ণবী স্পোর্টস একাডেমি থেকে অনেক অনেক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি আমরা। নতুন ওভার শুরু হবে, মাইক্রোফোনে পালা বদল প্রথমবারের জন্য। ওয়েলকাম ধ্রুব। हेलो हेलो, थैंक यू सुरजीत दा। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। स्वागत करता हूं, अभिवादन करता हूं, इस्तकबाल करता हूं आप सबका खूबसूरत से वैष्णवी स्पोर्ट्स एकेडमी के सरजमीन पर। और आप देख रहे हैं आज के दिन का पहला मुकाबला मेरठ सदर बंगाली क्रिकेट टूर्नामेंट सीजन 4। ये चौथा साल है, लेकिन ये सबसे बेमिसाल है। और आज के दिन के पहले मुकाबले में ही ना, आज के दिन के पहले मुकाबले में ही सिर्फ 2-4 नहीं, आप देख सकते हैं 22 सुपरस्टार खिलाड़ी, वो भारत के हर एक कोने कोने से, वो तमाम सभी राज्य से स्वाद उठकर आए हैं आज उत्तर प्रदेश मेरठ के ये सरजमीन पर। हेलो 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 इसी के साथ 4 ओवर कंप्लीट हो चुका है। 4 ओवर के बाद रन संख्या 50 है, 50 लग चुका है स्कोरबोर्ड पर 3 विकेट के नुकसान पर। और বাপি ওইদিকে যে বলগুলো যাচ্ছে বলগুলো ফিরে দাও। বাপি তোমাদের দিকে যে বলগুলো যাচ্ছে ওই বলগুলো ফিরে দাও, वापसी करो। और एक कैमियो इनिंग्स यहाँ पर। चलिए यहाँ पे सीधा खेलने का प्रयास है और ये तगड़ा शॉट। चलिए फिर एक बार वो मैदान को चीरते हुए स्वागत किया है यहाँ पर मनीष राठी को, चौके के साथ, बाउंड्री के साथ। बिल्कुल ये जोड़ी के ऊपर ना नजर रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि एक तरफ आप देख सकते हैं स्ट्राइक पर ओमी केन पूरी तरीके से इस इनिंग्स को पकड़े हुए हैं, और दूसरी ओर वो इंपैक्टफुल कैमियो इनिंग्स यहां पर आता हुआ खिलाड़ी सोनू अलीगढ़ की तरफ से। फिर एक बार चले हैं मनीष राठी। 5वें ओवर का खेल यहां से प्रगति पर। ये देखिए ये तगड़ा लाइन है, मनीष राठी अपने पेस को बैक करते हुए दिखे हैं। वो पहला गेंद में ना थोड़ा सा धीमा डालते हुए दिखे थे, लेकिन ठीक उसके बाद
अपने गियर को शिफ्ट किया है यहाँ पर मनीष राठी ने। बेहतरीन गेंदबाजी, लेग बाई के तौर पर सिंगल मिल चुका है। स्ट्राइक को रोटेट कर चुके हैं। स्ट्राइक पे सोनू आलीगर। ये खिलाड़ी मैदान के चारों ओर को टारगेट करता है। ये कोई एक क्षेत्र पर नहीं मारता है, ये मैदान पे हर एक क्षेत्र पर ये रन बनाने के लिए बिल्कुल तैयार रहते हैं। फील्डिंग साइड थोड़ा सा प्रेशर में दबाव को महसूस करते हुए दबाव को झेलना होगा। चलिए फिर एक बार मनीष, हल्के हाथों के साथ डिपेंडेबल क्रिकेट कह सकते हैं। सिर्फ सिंगल लेकर स्ट्राइक को रोटेट किया है क्योंकि जानते हैं मनीष राठी ये कौन से गेंदबाज को टारगेट करते हैं। सोनू आलीगर पूरी तरीके से दिमाग में चल रहा होगा। मनीष राठी को सम्मान देते हुए स्ट्राइक को रोटेट करते हुए यहां पर स्ट्राइक पे उनके आप देख रहे हैं एस्ट्रोकस पे लाइव एंड एक्सक्लूसिव ये शानदार सा क्रिकेट टूर्नामेंट मेरठ सदर बंगाली क्रिकेट टूर्नामेंट वैष्णवी स्पोर्ट्स एकेडमी से हम लाइव आ रहे हैं आप सबके साथ। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे तमाम सभी कैमरा पर्सन का, जिस तरीके से हर एक मोमेंट आपको दिखा रहे हैं स्क्रीन की ओर। चलिए फिर एक बार मैदान की ओर आते हैं। फिर एक बार मनीष तैयार। यह तगड़ा शॉट है डाउन द ग्राउंड अलोंग द कारपेट कह सकते हैं। बिल्कुल सिंगल लेकर स्ट्राइक को रोटेट किया है। वो पहले गेंद से रन आया है, बड़ा शॉट आ चुका है। ठीक उसके बाद सिंगल डबल रोटेट करना चाहेंगे क्योंकि जानते हैं ये खेल ना, ये क्रिकेट सिर्फ बड़े शॉट का खेल नहीं है। सिंगल डबल रोटेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। स्ट्राइक पे फिर एक बार सोनू आलीगर, मिस्टर 360 डिग्री हम कह सकते हैं। मैदान के हर एक क्षेत्र को टारगेट करना जानते हैं। यहाँ पर देखकर छोड़ दिया है, कोई गलती नहीं, रिस्क नहीं लेना चाहेंगे क्योंकि बहुत बाहर था ये गेंद बिल्कुल। और इसी के साथ एक और वाइड बॉल एक्स्ट्रा के तौर पर रन जुड़ता हुआ। और अगर हम स्कोरबोर्ड पे और नजर डालें तो 58 ये ओवर में अभी तक 4 गेंद से 8 रन आ चुका है मनीष राठी के। यहाँ से एक ब्रेक थ्रू चाहिए एफआई टाइटन टीम के, और दूसरी ओर पुंदिर क्लब स्कोर करना चाहेंगे। फिर एक बार मनीष, सोनू आलीगर, ये ऊंचा है, नीचे फील्डर सेफ हैंड्स, और इसी के साथ बाहर जाना होगा सोनू आलीगर को। क्यों बात कर रहा था कि ये गेंदबाज ना मनीष राठी ये दबाव सिचुएशन में, प्रेशर सिचुएशन में अपने आप को प्रूव करना जानता है। एक बेहतरीन कैच और इसी के साथ एक कैमियो इनिंग्स खत्म होगा। बाहर जाते हुए दिखे हैं सोनू आलीगर। बैक टू द पवेलियन। एज ए न्यू बैटर शुभम लेफ्टी मैदान की ओर जाते हुए एक अच्छा इनिंग्स यहां पर कह सकते हैं सोनू आलीगर का। और मनीष राठी ने ना वो पिछला गेंद वाइड डाला था, लेकिन ठीक उसके बाद ऑफ स्टंप के बाहर ही रखा है, क्योंकि अगर ऑन साइड की ओर गेंद को रखते तो बहुत इजी होता। तो यहाँ पे एक खराब शॉट और इसी के साथ विकेट मिलता हुआ सोनू आलीगर का। एज ए न्यू बैटर बल्लेबाजी करने मैदान की ओर आते हुए शुभम लेफ्टी, इनके ऊपर भी दारोमदार रहेगा क्योंकि 8 ओवर का मुकाबला वैष्णवी स्पोर्ट्स एकेडमी से हम लाइव आ रहे हैं। और 58 स्कोर है 4 विकेट के नुकसान पर, और लाइव एक्शन पर बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं। सो वेलकम, फिर एक बार आप सबका स्वागत है। आप हैं तब जाके हम हैं। थैंक यू वो तमाम सभी व्यूअर्स का। सब्सक्राइब करते रहिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। आप देख रहे हैं आयुष रॉकर्स पे लाइव एंड एक्सक्लूसिव मेरठ सदर बंगाली क्रिकेट टूर्नामेंट सीजन 4 वैष्णवी स्पोर्ट्स एकेडमी से हम लाइव आ रहे हैं। आज के दिन का पहला मुकाबला पुंदिर क्लब वर्सेस एफआई टाइटंस के बीच में, और टॉस जीता था, सिक्का उछला गया था, सिक्का जाकर गिरा था सीधा एफआई टाइटंस के पक्ष में, और उन्होंने डिसीजन लिया था हम पहले गेंदबाजी करेंगे। चलिए स्ट्राइक पे शिवम लेफ्टी, आते ही आते हल्के हाथों के साथ ऑफ साइड के क्षेत्र पर ढकेला है गेंद को, सिंगल मिल चुका है, स्ट्राइक को रोटेट किया है और स्ट्राइक अपने पास रखेंगे। इसी के साथ मनीष का एक बेहतरीन ओवर कंप्लीट होगा।
5 ओवर की होगी समाप्ति। 5 ओवर के बाद पुंदीर क्लब का स्कोर 59, 59, 4 विकेट के नुकसान पर। बहुत बहुत शुक्रिया मेरठ सदर बंगाली क्रिकेट टूर्नामेंट के तमाम सभी कमेटी मेंबर्स का। स्पेशल थैंक्स टू मोहन मिश्रा, फुल एंटायर टीम, जिस तरीके से ये शानदार सा टूर्नामेंट को आयोजित किया है सर ने। और उसी के साथ ये 2 दिन आज और कल मेरठ के ये सरजमीन पर वैष्णवी स्पोर्ट्स एकेडमी पर सिर्फ उत्तर प्रदेश नहीं, सिर्फ मेरठ नहीं, सिर्फ बंगाल नहीं, सिर्फ बिहार नहीं, सिर्फ झारखंड नहीं, तमिलनाडु हो, चाहे नॉर्थ बंगाल हो, नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया, हर एक क्षेत्र से, वो भारत के हर एक कोने कोने का स्वाद आपको नजर आएगा ये टूर्नामेंट पर। छठे ओवर का खेल प्रगति पर, गेंदबाजी यूनिट पर इजाज मंडेला। पहला गेंद फुल टॉस, शिवम लेफ्टी, ऑफसाइड के क्षेत्र पर, डीप एक्स्ट्रा कवर के क्षेत्र पर खिलाड़ी मौजूद है, सिंगल मिल जाएगा, स्ट्राइक को रोटेट करेंगे। और बिल्कुल बात करेंगे ओम केन के बारे में। ये खिलाड़ी ना वो एक तरफ से पूरी तरीके से अपनी टीम के इनिंग्स को पकड़े हुए हैं। बिल्कुल बल्लेबाजी बेहतरीन हो रहा है ओमी केन के द्वारा। स्ट्राइक पे फिर एक बार जोर से खेलने का प्रयास, लोअर वन, एक बेहतरीन गेंद। और क्यों कहा जाता है कि बॉलिंग 150 इज नॉट द क्रिकेट। आपको स्लोअर डालना होगा, वेरिएशन रखना होगा अपने हाथ में, तब जाके आप अच्छे गेंदबाज बनेंगे। बिल्कुल इजाज मंडेला फिर एक बार तैयार, स्ट्राइक पे ओमी केन। यहां पे फिर एक बार थोड़ा सा खराब गेंद कह सकते हैं, गति के साथ खिलवाड़ करना चाह रहे थे। फिर एक बार स्ट्राइक को रोटेट किया है और उस्मान पटेल वहां पर मौजूद थे, भागकर आते हुए गेंद को पकड़ते हुए स्ट्राइक को रोटेट कर रहे हैं। स्ट्राइक को रोटेट करते हुए फिर एक बार शिवम लेफ्टी। ये इनिंग्स को बिल्ड करना होगा। 8 ओवर का मुकाबला, छठे ओवर का खेल प्रगति पर। फिर एक बार चले हैं मंडेला, फिर एक बार ऑफसाइड के क्षेत्र पर खिलाड़ी मौजूद है। सिंगल से क्या डबल रोटेट करेंगे? नहीं, सिंगल के साथ संतुष्ट रहना होगा। रन संख्या 62। ओवर की आखिरी 2 गेंद, इजाज मंडेला तैयार, स्ट्राइक पे ओमी केन। सीधा खेला है तीर की तरह एकदम, लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र पर फील्डर मौजूद है, सिंगल ही मिलेगा। और ये ओवर में ना वो बड़े शॉट की ओर गए हैं, लेकिन बड़े शॉट में तब्दील नहीं कर पाए हैं। स्ट्राइक को रोटेट करते हुए स्ट्राइक पे फिर एक बार शिवम लेफ्टी। आखिरी गेंद, ये ओवर का क्या टारगेट करेंगे या फिर वो आखिरी के 2 ओवर में गियर को शिफ्ट करना चाहेंगे? जोर से खेलने का प्रयास और इसी के साथ सीधा विकेट के पीछे नदीम धनूरी के हाथ में। और डॉट बॉल के साथ 6 ओवर की होगी समाप्ति। 6 ओवर के बाद रन संख्या 63, 4 विकेट के नुकसान पर पुंदीर क्लब। या आखिरी 2 ओवर कैसे अपने गियर को शिफ्ट करते हैं? आखिरी दो ओवर में कैसे अपने गियर को शिफ्ट करते हैं, सब कुछ आपको बताएंगे सीधा लाइव प्रसारण में। सुनते रहिए। माइक्रोफोन में होगी तब्दीली। प्लीज वेलकम मिस्टर राजा बाबू। थैंक यू ध्रुव। स्वागत आप सभी का फिर से एक बार सदर बंगाली क्रिकेट टूर्नामेंट सीजन 4 में। 14 साल सबसे अलग है और टीम की बात करें, पहला मुकाबला ही धमाकेदार अंदाज में शुरू हुआ है। टॉस जीत के किया पहले क्षेत्र रक्षण करने का फैसला। वो फैसला क्या सही होगा या फिर पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम जीत जाएगी? गोलू कप्तान साथ ही साथ नदीम हुडा ने कहा कि उसे करनी है क्षेत्र रक्षण। दोनों टीम चाहती थी क्षेत्र रक्षण करना, मगर किसी एक को मिलेगा। और इस मैच की बात करें, चाहे वो राजस्थान के शान के रूप में नदीम धनूरी हो या फिर राजस्थान के एक और मीना साहब, एजाज मंडरेला लोग आप देख रहे हैं, साथ ही साथ आप देख रहे हैं नईम सिसोदिया को, आशिक अली, इमाद इल्लू, मनीष राठी,
थॉमस डाइस और द लेजेंड उस्मान पटेल। खिलाड़ियों की भरमार है, कोई भी आपको छोड़ेगा नहीं। कृष्णा गौली, ओम केने जो अभी यंग सेंसेशनल बने हुए हैं, पिछले कुछ दिनों से जिस तरीके से उन्होंने बल्लेबाजी की वो काबिल तारीफ है। शानू अलीगढ़ ने अच्छी बल्लेबाजी की है। तो मुकाबला जैसा आप चाहते हैं वैसा हो रहा है, और पहला मुकाबला ही ऐसा हो तो फिर आप कहेंगे कि कहीं ना कहीं जो आप देखना चाहते थे सदर बंगाली क्रिकेट टूर्नामेंट में वो आप देख रहे हैं। अगला मुकाबला बस कुछ ही क्षणों के बाद, इस मैच के बाद आप टॉस देखेंगे इस इनिंग्स के बाद, वो होगा एमएम ब्रदर्स वर्सेस दिल्ली धमाका। आरजे ग्रुप दिल्ली धमाका, दोनों टीम तैयार हो रही है। गौरव साहब चिंतित मुद्रा में, कल उनका टीम अनाउंसमेंट हुआ है, वहां कैसे परफॉर्मेंस करनी है वो चीज़ नज़र आ रही है उनके चेहरे पे। थोड़ी सी शिकन, कोई बातचीत हो रही है बीच मैदान में भी, कोई अंपायर से बातचीत हो रही है। अंपायर का निर्णय ही अंतिम निर्णय होगा। चार ओवर में 63 बने, सॉरी 6 ओवर में 63 बने हैं, 4 विकेट आपने गंवाए हैं। अब भी बचा है ऐसे 2 ओवर यानी 12 गेंदे, 12 गेंदों पे कम से कम अगर 20 या 25 बन गए तो फिर कहेंगे कि कहीं ना कहीं आपकी शुरुआत ठीक है पहले इनिंग्स में। करें मैच ऑफिशियल से रिक्वेस्ट है, प्लीज कैरी ऑन करें। प्लीज कैरी ऑन करें, समय काफी हो चुका है और जो भी गलती हुई है उस चीज को देखते हुए अंपायर महोदय निर्णय ले, और अंपायर का निर्णय अंतिम होगा।
कुछ टेक्निकल इशू के कारण थोड़ा देर मैच बंद था, फिर से शुरू हो चुका है गेंदबाजी के लिए। इमादिल्लू, ओमी केने कमाल की बल्लेबाजी। पिछले कुछ समय से जिस तरीके से ये सबके सामने अपना जौहर दिखाया है। अच्छा शॉट, पीछे फील्डर भाग रहे, क्या बचा पाएंगे? अंतिम कोशिश मगर बाउंड्री जाएगी। 4 के 7 ओवर की शुरुआत है। नदीम धनोरी अंतिम समय तक कोशिश की थी मगर बाउंड्री रोक नहीं पाए। मैं बातचीत भी कर रहा था ओम केने के बारे में कि ये पिछले कुछ समय से एक अलग अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे हैं। ये देखें, एफर्ट अच्छा था मगर इतना नहीं कि उसके करीब तक पहुंच पाए। विकेट के पीछे उस्मान पटेल तो लेजेंड। इस बार यार लेन इनको खेलना उतना आसान है नहीं क्योंकि इनके पास वो वेरिएशन दिखती है। और इसी ग्राउंड में देखा था हमने पिछले साल की किस अंदाज में गेंदबाजी कर रहे थे। वो 5 विकेट एक मैच में इन्होंने लिया था। इमाद इल्लू, मैं यही बातचीत भी यही कर रहा था, इनके पास वो वेरिएशन है कि कहां पे गिरेगी गेंद वो देखना थोड़ा सा मुश्किल होता है। और लेफ्ट हैंडर के लिए थोड़े से ज्यादा ही घातक साबित होते हैं ये। शिवम लेफ्टी बल्लेबाजी अच्छी करते हैं मगर अंतिम समय तक फिनिश करना पड़ेगा। स्क्रीन पे देखें आप, डगआउट थोड़े से चिंतित मुद्रा में नजर आ रहे हैं। सबसे ज्यादा गौरव करें कि कर क्या रहे यार, क्योंकि इसके बाद एक ही ओवर बचेगा। छक्के का साइन दिखाया गौरव साहब ने, छक्के का साइन दिखाया मगर पीछे फील्डर सिंगल ही आएगा। अब सिंगल से ज्यादा दिक्कतें आएगी नहीं क्योंकि 8 ओवर के मुकाबले में जो ऑपोजिशन टीम की बल्लेबाजी लाइनअप देख रहे हैं, चाहे वो विकेट के पीछे उस्मान साहब हो, नदीम धनोरी हो, या फिर आप बात कर सकते हैं थॉमस डायस, ऑफ स्टंप के बाहर वाइड का इशारा अंपायर मिस्टर श्रीकांत बेहरा द्वारा। एक और अतिरिक्त रन, कुल स्कोर 70 रन, 70 पे 4 हैं। सातवां ओवर प्रगति पे, इसके बाद मात्र 6 गेंदों का खेल बचेगा। कवर के क्षेत्र में खेला गया 1 रन। और इस ग्राउंड की खासियत है कि सामने खेलेंगे तो थोड़ा सा मुश्किल है। साइड बाउंड्री थोड़ी सी आपको छोटी नजर आ रही है मगर इतना नहीं कि आप हर बॉल पे बाउंड्री भेज सकें। 71 लॉस ऑफ 4 विकेट। उड़ा तो है, कहां दूर गई है, कितनी दूर गई है? 6 रन जितनी दूर गई है। शिवम लेफ्टी इमादिल्ली को पड़ा भी है और सीधा 6 के लिए भेजा भी है। इस 6 के साथ स्कोर में इजाफा, स्कोर पहुंच गई है 77। हेलीकॉप्टर वाला अंदाज इमाद इल्लू। थोड़ा सा पढ़ना मुश्किल था मगर इस समय तो पढ़ लिया है। ये देखें आप, लोकल बॉय का अंदाज बेखौफ है। 7 ओवर 77 रन, 11 रन प्रति ओवर बनाया है। अब आखिरी ओवर डालेगा कौन? एजाज मंडरेला राजस्थान से आते हैं, तेज गति के साथ गेंदबाजी करना पसंद करते हैं, फिनिशर अच्छा है ये। अब इस समय जब बल्लेबाजी के लिए आएंगे दूसरी इनिंग्स में, उस समय फिनिश अच्छा करते हुए नजर आएंगे शायद आपको। फुल टॉस बॉल, तेज गति से आपको छका रहे हैं। अब सबसे ज्यादा अगर आपको विकेट लेते हुए क्लीन बोल्ड के तरीके से दिखते हैं तो ये एकमात्र गेंदबाज हैं। सबसे ज्यादा क्लीन बोल्ड करना पसंद करते हैं, तेज गति के साथ बल्लेबाज को छकाते हैं। अब 2 लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज हैं तो थोड़ा सा परेशानी में एजाज दिखेंगे जरूर मगर फिर भी ये बेहतर कर सकते हैं। आखिरी ओवर है, फिनिश अच्छा करना पड़ेगा। अब पुंडरी क्लब चाह रही कम से कम यहाँ से 15 रन और 15 रन और ऊंची तो गई है, अब ऊंची तो गई है, 6 देकर भी गई है।
लोकल बॉय अपना जलवा इस समय होम ग्राउंड में दिखाता हुआ। इस छह के साथ स्कोर में इजाफा 90, 4 विकेट के नुकसान पर। सॉरी 84। अब ये कहां गई है भाई साहब, ऊंची काफी है, दूरी प्राप्त कर नहीं पाए, सीधा फील्डर के हाथों में गई है। बड़ा विकेट, अंतिम समय। चौरासी पे 5 है। 6 लगा जरूर था, मगर उसके बाद देखें जिस तरीके से वापसी, तेज गति में आप बीट करते हैं इनको। कप्तान साहब आए हैं, कप्तान साहब आए हैं। इस बार भी गति तेज थी, इसी वजह से फंसा है। ऐसे जो फुल टॉस बॉल आती है उनको आप आसानी के साथ छक्के में तब्दील करते हैं, बट इनका जो फुल टॉस आता है उससे आप धकेल नहीं सकते बाउंड्री तरफ। यही खासियत इस गेंदबाज की। इस समय स्ट्राइक पे रहेंगे ओमिके ने। $85। ओ भाई साहब, मौका यहां पे बना था, कॉटन बोल्ड का चांस था, मगर इतना नहीं कि आप पकड़ सके, और आसान होता भी नहीं है खास करके तेज गेंदबाज का, क्योंकि जितनी तेज गति के साथ आते हैं उससे दुगना तेज गति के साथ ये शॉट खेला था। अब आखिरी बॉल ऑफ द फर्स्ट इनिंग्स। पहला इनिंग्स का ये आखिरी बॉल। इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट मुकाबला आपको नजर आएगा, MM ब्रदर्स वर्सेस दिल्ली धमाका। फुल टॉस इस बार भी है, और फुल टॉस को सीधा बाउंड्री में तब्दील भी किया है। आखिरी बॉल, अंत भला तो सब भला। इस 4 के साथ स्कोर में इजाफा हो गया, स्कोर पहुंच गई है 90 पे। 90 पे 5 है, 91 चाहिए 8 ओवर में जीतने के लिए। 91 क्या पॉसिबल है या नहीं वो देखा जाएगा। जिस तरीके से बल्लेबाजी हुई है, काबिले तारीफ गेंदबाजी शुरुआती दौर में ठीक होती है, मगर अंतिम में फिनिश अच्छा कर जाते हैं। वो सानू अलीगढ़ का इनिंग्स काफी बेहतर रही है, और उसी वजह से इस स्कोर को इतना देख रहे हैं। बट वहीं ऑपोजिशन टीम की अगर बल्लेबाजी की बात करें, वहां पे ओपन के लिए शायद नदीम धनूरी, या फिर आपको नजर आएंगे वहां पे उस्मान पटेल। वही गेंदबाजी जो विश्लेषण है आप देख रहे हैं, आशिक अली 2 ओवर मात्र 9 रन देके 1 विकेट, काफी किफायती गेंदबाजी। मनीष राठी भी अच्छी गेंदबाजी की, 2 ओवर में 3 विकेट इनके नाम, 19 रन जरूर खर्च किए। इमादिल्लू 2 ओवर 44 रन, सबसे ज्यादा महंगा। एजाज मंडरेला 2 ओवर 17 रन, इनके नाम भी 1 विकेट है।
पहला विकेट गिरा 13 पे, दूसरा 13, फिर 20, 58, 84। अब बैटिंग की बात करें वो बेहतर रही है, 48 गेंदों में 91 चाहिए, क्या होगा या नहीं देखना दिलचस्प होगा। आरजे धमाका दिल्ली और एमएम ब्रदर्स दोनों टीम के कैप्टन से रिक्वेस्ट है, प्लीज टॉस के लिए आप आ जाएंगे। हेलो कुर्बान स्वागत आप सभी का फिर से एक बार दूसरा इनिंग्स, और बीच मैदान में आप देख रहे हैं एक तरफ आपको दिखेंगे उस्मान द लिविंग लेजेंड उस्मान पटेल साहब, और दूसरी तरफ आपको बल्लेबाजी उनके जोड़ीदार के रूप में मौजूद हैं शान ऑफ राजस्थान धनूरी, नदीम धनूरी साहब। तो बेस्ट बैटर आपको बीच मैदान में बल्लेबाजी के लिए दिख रहे हैं, और गेंदबाजी की कमान किसके हाथों में ही होगी, गोलू गाजियाबाद वो तय करेंगे। शायद वरुण, इम्पैक्ट, वरुण आया है इम्पैक्ट के तौर पे। ये देखे दोनों स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं दो प्रारंभिक बल्लेबाज उस्मान पटेल और नदीम धनूरी। वहीं गेंदबाजी की बात करें, नदीम के सामने वरुण। अब इस स्कोर को अगर डिफेंड करना है तो फिर पिटाई को रोकना पड़ेगा, क्योंकि जो दो बल्लेबाज हैं इनके पास वो काबिलियत है, पिटाई कर सकते हैं। वरुण कुमार
पहला बॉल नदीम नदीम धनूरी, गेंद को भेजा काफी दूर, 6 के साथ किया शुरुआत है। ऐसा इनका रवैया हमेशा रहता है। मैं वही बातचीत भी कर रहा था कि इनके पास वो काबिलियत है, कला है कि कभी भी किसी भी वक्त ऐसे शॉट वो खेल सकते हैं। पर कमाल के गेंदबाज हैं, वापसी वो कर सकते हैं, वापसी करना पड़ेगा क्योंकि जो स्कोर आपने बनाया है 8 ओवर में, इस समय कह सकते हैं कि छोटा टोटल है। इसके बाद अगला मुकाबला एमएम ब्रदर्स वर्सेस आरजे ग्रुप दिल्ली धमाका। अच्छा शॉट है ये, इस बार ताकत नहीं, इस बार नजाकत है, बाउंड्री के करीब जा रहे हैं। अच्छा क्षेत्र रक्षण, निश्चित रूप से अपनी टीम के लिए 2 रन बचाए हैं ये। आठ रन, 8 पे 0, 8 पे 0 है। इस बार ओवर द टॉप, ओवर द कवर, 6 रन और। इस 6 के साथ स्टेटमेंट है कि आप गेंदबाज बदल लीजिए क्योंकि पिटाई करने को छोड़ेंगे नहीं है। आसान इनके लिए बल्लेबाजी करना। इस पिच पे बातचीत भी हो रही थी सुबह जब पिच को हमने देखा था, तो लोकेश मीना साहब ने कहा था कि ये पिच कमाल की है बल्लेबाजी के लिए, वो सीधा जो खेलेंगे वो बेहतर खेलेंगे और सीधा खेलना पसंद भी करते हैं। धनुरी साहब, अभी तक पटेल साहब स्ट्राइक पे आए नहीं है, पिटाई इनकी जा रही है। अब देखना है कि उस्मान साहब की कितनी ज्यादा तैयारी है। इसी ग्राउंड पे पिछले साल हमने देखा था अर्धशतक जड़ा था उस्मान पटेल साहब ने, काफी तेज अर्धशतक था वो, काफी तेज था। इस समय देखें आप नदीम का बल्ला, माशाअल्लाह, वाह अद्भुत है ये। ऐसा मानो ये तय करके आए कि आज पिटाई के लिए जाना है, एक भी बॉल को डिफेंस करने को जाने रहे। ये लेफ्ट हैंडर गेंदबाज को खेलना पसंद करते हैं, लेफ्ट हैंडर आए हैं और बिल्कुल छा गए हैं। अंदाज़े बयां बेखौफ है इनका। पहला ओवर में ही कुल स्कोर 20 आ चुके हैं पहली 4 गेंदों पर। स्टंप के बाहर पहली डॉट बॉल है ये। आप इसी लाइन पे डाल सकते हैं क्योंकि इनके पैरों पे डालोगे तो फिर ये पिटाई करने को छोड़ेंगे नहीं आपको। पैरों पे जब जब गेंदबाजी की गई, चाहे गेंदबाज कोई भी हो, ये पिटाई करने के लिए हमेशा लॉन्ग ऑन और लॉन्ग ऑफ का क्षेत्र को चूज करते हैं। काफी कम ऐसे बल्लेबाज हैं जो सीधा खेलना पसंद करते हैं और नदीम धनूरी को जब जब देखेंगे आप क्रिकेटिंग शॉट खेलना ज्यादा पसंद है इसे। छोटा सा हेलीकॉप्टर हाथ में आती तो शायद रन आउट हो सकता था। ये हाफ चांस को ना फुल चांस में आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब आखिरी बॉल पे आया सिंगल, यानी इंतजार करना पड़ेगा उस्मान साहब को स्ट्राइक पाने के लिए। पहला ओवर हुआ समाप्त, पहला ओवर समाप्ति पे कुल स्कोर बनाए 21 रन, विकेट के खाते में 0 है। मेरठ की सरजमी का सबसे खूबसूरत टूर्नामेंट आप देख रहे हैं आयुष रॉकर्स यूट्यूब चैनल पर। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें। आपका अपना चैनल आयुष रॉकर्स। और भी कई आने वाले इवेंट्स आपको नजर आएंगे, चाहे बंगाल का आपकी कप की बात करें या फिर बीजीपीएल की बात करें। बारह बज के 34 मिनट में शुरू हुआ ये मुकाबला और जो ड्रिंक्स लेके अंदर जाएंगे वो आपके 12 मैन ही होनी चाहिए। प्लेइंग 11 का कोई भी हिस्सा मैदान में अगर जाएंगे तो फिर पेनल्टी की भागीदार आप होंगे। गौरव साहब, अब गौरव आए हैं। गौरव थोड़े से किफायती गेंदबाज रहते हैं इस पिच पे। पिछला साल भी जब इनको मैंने देखा था यहाँ खेलते हुए, तेज गति के साथ डालते हैं। और खुशी की बात यह कि गौरव साहब नए टीम में इस साल खेलते हुए दिखेंगे आपको वेस्ट बंगाल में। टीम अनाउंसमेंट हुई है, उसका भी
खुशी उसके चेहरे पे नजर आ रही है, मगर स्ट्राइक पे इस समय तो फिर कह सकते हैं कि ड्राइविंग सीट पे बैठे हुए हैं नदीम साहब। नदीम धनूरी ये हर गेंदबाज की मुरादे को करती पूरी है। विकेट के पीछे पासवान थोड़े से बातचीत कर रहे हैं, अच्छी तरीके से जानते हैं कि कैसे नदीम धनूरी को रोकना है। कई बार आमने सामने खेलते नजर आए हैं। कैसे रोकेंगे आप इसे, कैसे रोकेंगे आप? ये पावर प्ले का फायदा उठाना जानते हैं और पावर प्ले में ये ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करते हैं। उसे अच्छी तरीके से मालूम है कि कहां पे फील्डर है। मिड विकेट पे फील्डर आपको नजर आ रहा है, मिड ऑफ पे नजर आ रहा है। अब शायद लॉन्ग ऑन पे रखा जाएगा। अब सवाल ये कि सीधा खेलना अगर पसंद करते थे फिर लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ क्यों नहीं है इनके लिए। 25 विदाउट लॉस। इस बार ऑन साइड की दिशा में फील्डर रखा है। इस बार भी फाइन लेग में खेलने की कोशिश। लेग बाय कैसा अंपायर द्वारा, एक और अतिरिक्त रन। 26 नदीम धनुरी बनाए 8 गेंदों पे 25, 26 बने इनके 25 हैं। अब ये दूसरा ओवर चल रहा है और पहली बार स्ट्राइक लेंगे द लिविंग लेजेंड उस्मान पटेल। जितनी भी तारीफ की जाए, पिछले कई सालों से टेनिस क्रिकेट में काफी अहम योगदान रहा है इनका। रायगढ़ का टाइगर फाइनल की दिशा में खेला है। पहली बॉल बाउंड्री तरफ जा रही है, क्या बचा पाएंगे? कोशिश अच्छी मगर इतना नहीं किया बचा पाए। बाउंड्री के साथ शुरुआत है रायगढ़ का टाइगर का। देखिए पहली बॉल तेज गति के साथ डाली गई थी। ये टाइम सही हुआ नहीं था इनसे, मगर इतना तो हो गया कि अब बाउंड्री प्राप्त कर गए हैं। अब शायद पल्ला बदलेंगे। एक्स्ट्रा मैन आ रहे हैं मैदान पे। 12 मैन देख रहे हैं आप। तीस रन। ओ वाइड बॉल, वाइड के साथ एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, 4 बार भागते तो रन मिलता आपको ये 4। 5 रन एक्स्ट्रा के रूप में आता हुआ। अब विकेट आपको दिख रही है, वो बोल्ड करना चाह रहे हैं मगर थोड़ी सी चूक हो गए हैं और ऐसे चालाकी कई बार करते हुए नजर आए हैं गौरव साहब। छोटा सा रनअप होता है और छोटा रनअप में ही काफी तेज गति के साथ डालते हैं। डॉट बॉल प्रेशर थोड़ा सा कम नजर आएगा आपको। अड़तीस गेंदों में 56 चाहिए। 38 बॉल 56 रन। कैलकुलेशन दिख तो रहा आसान है मगर इतनी आसानी के साथ जीत के करीब आपको जाने देंगी नहीं ये टीम पुंडीर क्लब। क्या इस बार मौका था? गेंदबाज के हाव भाव से तो लग रहा है कि मौका था। वो जब जब कैच छोड़ते थे फिर कमर पे हाथ दे खड़े हो जाते कि मैंने गलती कर दी है। ये देखें शायद मौका था, छूट गई है। अच्छे फील्डर है गौरव साहब। कैच छोड़ा किसका आपने ये भी देखना पड़ेगा, उस्मान पटेल का। सेंसिबल क्रिकेट, ऐसा नहीं कि हर बॉल आप छक्के लगा सकते हैं। अगर आपके रडार पे आ रही है तो फिर आप सिंगल के ले जाएं और जब जब आपको मिला बॉल वो छक्के लगाने के लिए वो छक्के लगा सकते हैं। नदीम धनूरी बेहतर बल्लेबाजी कर रहे हैं तो उसको स्ट्राइक में लाने का प्रयास किया जा रहा है। 2 ओवर हुआ समाप्त। 2 ओवर समाप्ति पे कुल स्कोर बनाया 36 रन। विकेट के खाते में 0 है। 18 रन प्रति ओवर रिक्वायर्ड रन रेट की बात की जाए तो फिर यहाँ से 9.5 या फिर 9 तक ठीक ठाक है।
आरजे धमाका आरजे दिल्ली धमाका, आरजे ग्रुप दिल्ली धमाका और एमएम ब्रदर्स टॉस के लिए आ जाएंगे प्लीज, टॉस के लिए प्लीज आ जाएंगे विथ प्लेयर लिस्ट। कामरान, कामरान साहब का आगमन पहली बार, पहली बार हुआ है। पहली बॉल, कैच का कॉल, कैच का कॉल, पकड़ा गया कैच, पहली बॉल पे विकेट मिला है, बड़ा विकेट जाना पड़ेगा वापस। ओम केनी गलती की नहीं, एक अच्छा कैच, पहली बॉल पे रायगढ़ का टाइगर को भेजा वापस है। मैच फिर से एक बार आप कह सकते हैं कि ऑन है। 5 गेंदों पे 5 बना के गए वापस, एक गए लेजेंड तो दूसरे लिविंग लेजेंड आ गए हैं। मुंबई का तूफान थॉमस डायस। अब थॉमस डायस जब तक क्रिकेट खेलते हुए नजर आएंगे ना, या फिर जब तक क्रिकेट रहेगा, वो एक बॉल पे 6 रन इंडिया का वेस्ट बंगाल को हमेशा हमेशा के लिए याद रहेगा। सबके सपनों को तोड़ा था और अपनी टीम के सपनों को सजोया था ये खिलाड़ी, सबकी आस बन के सामने आया था। इसे विश्वास था कि ये लगा सकते हैं। 5वीं बॉल पे सिंगल लेके अपने जोड़ीदार को आउट कराया और स्ट्राइक मांगी, स्ट्राइक में गए और 6 जड़ दिया था विजय सरकार को। यादगार पल, थॉमस डायस स्ट्राइक पे। कामरान, सिंगल आ जाएगा। कैच लोकेश मीना ने पकड़ा था शायद। 37, 10 का रन रेट अब यहां से चाहिए। जब तक बीच मैदान में नदीम धनूरी है, उम्मीदें बनी हुई है। आशिक अली भी बल्लेबाजी कर सकते हैं। आशिक अली जिस तरीके से बल्लेबाजी की हैदराबाद की सरजमी में, और सिर्फ हैदराबाद नहीं, उसे मैं जब जब देखता हूँ केरला के साइड में खेलते हुए काफ़ी ज़बरदस्त बल्लेबाजी करते हैं, और ऐसे पिचेस में वो बेहतर नजर आएंगे बल्लेबाजी करते हुए। फुल टॉस बॉल कहां गई है, कितनी दूर गई है, ओवर बाउंड्री देकर गई है। वेल डन धनूरी साहब। फाइट, बैटिंग साइड रिव्यू। बल्लेबाज को लगा कि वो जाएंगे रिव्यू के लिए, उसे लगा कि उसके हाइट से ऊपर है, कमर के हाइट से ऊपर। वो चेक की जाएगी क्या ये नो है या नहीं। 43, चेक की जा रही है। इट्स नो बॉल, नो बॉल। रबील इस्लाम थर्ड अंपायर के रूप में मौजूद हैं। बीच मैदान में आप मेन अंपायर के रूप में देख रहे हैं मिस्टर श्रीकांत बेहरा। प्रसन्नजीत दत्त लेग अंपायर के रूप में। फ्रीट, फ्रीट है, ऊंची गई है, दूरी प्राप्त की नहीं है, दूरी प्राप्त की नहीं है। एक नहीं दूसरा भी भाग जाएंगे आप। रनिंग वीडियो में विकेट देखें आप दोनों के बीच में, और नदीम धनूरी की खासियत भी है ये। 46, नदीम धनूरी 10 गेंदे 33 रन। 33 गेंदों में 45 चाहिए अब। एक रन और। सिंगल्स डबल्स आपको लेते हुए दिखाई देंगे। ये काफी बिजी मैन जाने जाते हैं बीच मैदान में, आप इसको शांत नहीं रख सकते हैं, और वहीं रवैया भी रहा है इनका। আচ্ছা নেক্সট ম্যাচে টসের জন্য দুই দলের ক্যাপ্টেন জয়েন করবেন। थॉमस डायस, सानू अलीगढ़ थे। एक नहीं
दूसरा भागना चाहते, थोड़ी सी मिसफील्ड हुई जरूर थी शानू अलीगढ़ से, बट भाग गए हैं अब। 48 ओमकार देसाई आपको नजर आ रहे हैं, अगले मैच में खेलते हुए नजर आएंगे। एक और लेजेंड, अच्छी गेंदबाजी। नो बॉल को आप छोड़ दें, उसके बाद जिस तरीके से उन्होंने गेंदबाजी की है, पहली बॉल पे विकेट आती है, फिर उसके बाद पूरे ओवर में ठीक ठाक गेंदबाजी की है। 49 49 पे 1, 3 ओवर समाप्ति हुए। अब यहाँ से कॉम बॉक्स में होगा बदलाव, जुड़ेंगे अगले 2 ओवर के लिए मिस्टर सुरजीत दास। অনেক অনেক ধন্যবাদ রাজা। আরও একবার আপনাদের প্রত্যেককে স্বাগত মিরাট সদর বেঙ্গলি ক্রিকেট টুর্নামেন্ট। শেষ 5 ওভার, শেষ 30 বল থেকে 42 রানের প্রয়োজন। শুরু থেকে ব্যাটিং তাণ্ডব, প্রথম 2 ওভার ম্যান্ডেটরি পাওয়ার প্লে। নাদিম ধনুরির চওড়া ব্যাট যেভাবে নির্ভরতা দিয়েছে, আসলে যখনই প্রয়োজন নাদিমের ব্যাট বারবার একেবারে সামনে থেকে লিড করেছে। চতুর্থ ওভারের জন্য কাকে আনা হয়েছে? বিশাল। তবে বিশালকে এখান থেকে বেটার কিছু পারফরম্যান্স উপহার দিতেই হবে। ম্যাচে কামব্যাক করার রসদ। এফআই টাইটান্স 30 বল থেকে 42 রানের প্রয়োজন। আপনারা দেখছেন বৈষ্ণবী স্পোর্টস একাডেমি থেকে লাইভ আসছে। অনেকটা বাইরে, হোয়াইট বল আসবে, একটা রান আসবে অ্যাকাউন্টে। অতিরিক্ত সুবাদে, এবং প্রত্যেকটা অতিরিক্ত রান তোমাকে কোথাও না কোথাও একটু হলেও ম্যাচ থেকে দূরে সরিয়ে রাখবে। শেষ 30 বল থেকে 42 রান, এই মুহূর্তে একটা রান, সব মিলিয়ে 41 রানের প্রয়োজন এফআই টাইটান্স। পাল্লা অনেকটা ভারী বলতেই হবে। নাদিম ধনুরি দাপটের সঙ্গে ব্যাট করছেন। বল, দুর্দান্ত একটা ডেলিভারি। 1/4 ওভার, অ্যালাউমেন্টটা এলো শ্রীকান্ত বেহরার থেকে। ঢুকে দিয়েছিলেন, কাঁধের ব্যবহারটা করেছিলেন, একেবারে পুল করার চেষ্টায় ছিলেন নাদিম, এবং তার বুকের উচ্চতা নিয়ে বল সরাসরি উইকেট কিপার রাজের কাছে। একদম দুর্দান্ত কামব্যাক, এটা বলতেই হবে। এবং কমেন্ট্রি বক্সে আমি স্বাগত জানাচ্ছি ধ্রুবকে। थैंक यू सुरजीत दा। स्ट्राइक में नदीम धनोरी यहां नहीं छोड़ने वाला है। ये बेहतरीन शॉट है, और ये देखिए वो ऑफ साइड हो चाहे ऑन साइड हो, हर एक क्षेत्र को टारगेट कर रहे हैं नदीम धनोरी, द इनफॉर्म बैटर। बिल्कुल सुरजीत दा, आज पहला दिन है, डे 1 हम कह सकते हैं मेरठ सदर बंगाली क्रिकेट टूर्नामेंट लाइव एंड एक्सक्लूसिव आ रहा है आयुष रॉकर्स पे। तो ये माहौल देखते हुए कैसा लग रहा है आपको? একদম, যে শুরু থেকে আমরা এটাই আলোচনা করেছিলাম যে দুর্দান্ত একটা অ্যাটমসফিয়ার, 22 গজ, স্পোর্টিং উইকেট, আর সব থেকে বড় কথা সবুজ গালিচা পাতা যেন রয়েছে, আর সেখানে নাদিমের এই শটগুলো সত্যি অনিন্দ সুন্দর। बिल्कुल, फिर एक बार नदीम सीधा खेला है, ये ऊंचा है और गया भी है सीधा बाहर। नदीम धनोरी का बल्ला फिर एक बार बोला है, फिर एक बार एक बेहतरीन शॉट नदीम के बल्ले से। देखिए वो ऑफ साइड हो चाहे ऑन साइड हो, जब जब ये सीधा खेलते हैं ना, ऐसा लगता है कोई चित्रकार अपने पेंटिंग अपने चित्र में रंग डाल रहा है। बेहतरीन शॉट नदीम के बल्ले से। একদম আন্ডার প্রেসার আমরা বারবার দেখেছি, শুধু আজ নয়, বিগত কয়েকটা মরশুম যেভাবে রাজস্থানের এই ছেলেটি নিজের সেরাটা যেভাবে উজাড় করছেন, আন্ডার প্রেসার, প্রেসারটা কিভাবে অপোনেন্টকে দিতে হয় সেটা বেটার জানেন। এখান থেকে অনেকটা বাইরে, লাইনটা মিস করেছেন। এটা হওয়ারই কথা ছিল, কারণ দুটো ওভার বাউন্ডারির পরে একটু প্রেসার থাকে, এবং সেই চাপটা কোথাও যেন নিতে পারেননি। চাপটা ফিল করলেন, গতি আনতে গিয়েছিলেন অনেকটা বাইরে, যেখান থেকে একটা রান অতিরিক্ত হাত ধরে ওয়াইড সূত্রে। बिल्कुल सुरजीत दा, वो किसी भी मैच के लिए ना, किसी भी बड़े मुकाबले के लिए आपका स्टार्ट अच्छा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो पहला ओवर
पहले ओवर में नदीम धनूरी का बल्ला जिस तरीके से बोला है अभी तक वो बोल रहा है, बिल्कुल वो स्टार्ट जिस तरीके से स्टार्ट दिया था नदीम ने, वो स्टार्ट कैरी ऑन हो रहा है, चल रहा है वो स्टार्ट। এখান থেকে চমৎকার একটা ডেলিভারি, তবে ফ্লিক করেছেন, তৎপর ছিলেন ফেলসম্যান, ডাইরেক্ট হিট, সরাসরি আঘাত এসছে, তবে কনফার্মেশন কি আসছে, কনফার্মেশন চলে এলো। ম্যাচ অফিসিয়াল তিনিও তৎপর ছিলেন। রিস্কি রান বলতেই পারি এটা আমরা ধ্রুব, কারণ যে জায়গা থেকে দ্রুততার সঙ্গে কতটা ফিট না হলে হাফ চান্সকে ফুল চান্সে রূপান্তরিত করা যায়। एकदम स्कोर अभी तक बढ़ता हुआ सीधा 62 62 पे पहुंच चुका है। चौथे ओवर का खेल प्रगति पर प्रेशर में दिखते हुए यहाँ पे विशाल, वो तमाम सभी खिलाड़ी, फील्डिंग साइड का बॉडी लैंग्वेज, थोड़ा सा प्रेशर दिखता हुआ। स्ट्राइक पे थॉमस डैस, এখান থেকে শরীর থেকে অনেকটা দূরে, অ্যাওয়ে ফ্রম দ্য বডি, তবে বিদ্যুৎ গতিতে বল যাবে সবুজ মাঠের বুক চিড়ে, বাউন্ডারি আসবে। তবে কোথাও না কোথাও যেটা আমরা বারবার বলে থাকি, নাদিম যেভাবে প্রেসারটা ক্রিয়েট করছেন অপোনেন্টের ওপর, তো সেই প্রেসারটা আরো কন্টিনিউ করতে চাইছেন থমাস। এক্ষেত্রে বাউন্ডারি, আরো একটু প্রেসার, তবে কোথাও না কোথাও 66 চতুর্থ ওভারে খেলা চলমান। बिल्कुल। और फिर एक बार आप सबका स्वागत करते हैं हम वैष्णवी स्पोर्ट्स एकेडमी से लाइव एंड एक्सक्लूसिव आ रहे हैं आयुष अगस्त पे। बहुत सारे हेलो 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 आयुष अगस्त पे बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। और क्यों कहते हैं कि आयुष रॉकर्स आपका अपना चैनल, आपका घर का चैनल, सब्सक्राइब करते रहिए, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। थॉमस डायस, ये बेहतरीन शॉट है, फिर एक बार ऑन साइड के क्षेत्र को टारगेट करते हुए फिर एक बार थॉमस का बल्ला बोलेगा। वो कहते हैं ना, नदीम को देखते हुए थॉमस ने अपना रंग को पलटा है। फिर एक बार बेहतरीन शॉट, ओवर बाउंड्री 6 रन, और इसी ओवर बाउंड्री के साथ रन संख्या बढ़ता हुआ 72 72 4 ओवर के बाद। और यहां से आखिरी 4 ओवर 24 गेंद में चाहिए 19 रन। बिल्कुल 4 ओवर 24 गेंद में 19 रन। और सुरजीत दा, जिस तरीके से स्टार्ट दिया था नदीम ने पहला ओवर में, वो स्टार्ट कैरी हो रहा है, क्या कहना चाहेंगे? একদম এটাই আমরা বারবার বলছিলাম, কারণ যদি প্রথম ইনিংসটা দেখি, जो हम चर्चा कर रहे थे, जो कह रहे थे कि जिस तरह से पहला पारी जब शुरुआत हुआ था, पहला 3 ओवर जिस तरह से गेंदबाजी था, लेकिन इस इनिंग्स में अगर देखा जाए तो दोनों तरफ से हमला जारी है। और इस इनिंग्स से अभी तक एक रोचक स्थिति पर पहुंच चुके हैं टीम। 72 24 में 19, अब ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल ड्राइवर सीट में बैटिंग यूनिट। हेलो 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 चेक, बिल्कुल ये स्टार्ट कैरी ऑन रहेगा। स्ट्राइक पे फिर एक बार नदीम, और गेंदबाजी का मोर्चा संभालने के लिए वाइस को लाया गया है अंडर प्रेशर। एक और बार वाइस, शॉट ऑफ प्लेन हुक कर दिए है और सीधा फेंक दिए है, और इसी के चलते धनूरी अपने 50 पूरे करते हुए, थोड़ा सा बल्ला लहरा दीजिए धनूरी साहब। धनूरी धमाका जारी है बीच मैदान में। बिल्कुल नदीम धनूरी, राजस्थान की आन, राजस्थान की शान और भारत टेनिस क्रिकेट का आत्मसम्मान सम्मान। नदीम धनूरी फिर एक बार अपने आप को प्रूव करते हुए दिखे हैं। 17 गेंद में 52 और बेहतरीन स्टार्ट। और बिल्कुल जब जब ये किताब लिखा जाएगा ना, वो मेरठ सदर बंगाली क्रिकेट टूर्नामेंट का सीजन 4 का किताब लिखा जाएगा, वो किताब में पहला पन्ना बिल्कुल नदीम धनूरी का नाम रखा जाएगा। ये खिलाड़ी आए हैं, खिलाड़ी ने अपने आप को प्रूव किया है। वैष्णवी स्पोर्ट्स एकेडमी में हर एक क्षेत्र पर नदीम का बल्ला बोला है। और क्यों कहा जाता है नदीम का बल्ला माशाअल्लाह। धनूरी साहब, धनूरी धमाका जारी है बीच मैदान में, और जितने सारे फैन फॉलोअर है वो चाह रहे हैं यहां से जितना जल्दी हो सके मैच को खत्म किया जाए। धनूरी द्वारा इस बार बॉडी वेट को ट्रांसफर किया है बाहरी हिस्सा मैदान को चीरते हुए, पर पीछे फील्डर दौड़ रहे थे और आखिरकार फील्डर ने जीत प्राप्त किए है। नो बॉल के साथ 2 रन की इजाफा। और बिल्कुल ये देखिए, वो चौके के लिए गए तो थे, लेकिन ये 2 खिलाड़ी थॉमस और नदीम धनूरी के बीच में रनिंग बिटवीन द विकेट बेहतरीन दिखा है। एकदम बेहतरीन रनिंग बिटवीन के साथ आपको आगे बढ़ना होगा, सिर्फ चौके और छक्के के साथ नहीं। अगर 1-2 बड़े शॉट लगाने के बीच बीच में आप सिंगल और डबल रोटेट भी कर लेंगे, एक अच्छी स्थिति तक पहुंच जाएंगे और जल्द से जल्द इस मैच को खत्म करेंगे। चलिए रिव्यू।
और बिल्कुल चलिए बाउंड्री चेक किया जाएगा और ड्रॉप कहाँ है ये भी चेक किया जाएगा। बिल्कुल हम चेक कर रहे हैं। सो नो बॉल का कंफर्मेशन आ चुका है, इट्स अ नो बॉल और बाउंड्री से यानी कुल मिलाकर 3 रन की इजाफा होगा खाते में। दौड़ते हुए और नेक्स्ट मैच बोथ साइड कैप्टन प्लीज कम अप फॉर द टॉस। कैप्टन फ्रॉम एमएम ब्रदर्स, कैप्टन फ्रॉम आरजे ग्रुप, दिल्ली धमाका, जल्द से जल्द ज्वाइन कीजिए टॉस के लिए। बिल्कुल ये मुकाबला चल रहा है। अगले मुकाबले की ओर नजर डालेंगे, लेकिन ठीक उससे पहले ये शॉट देख लीजिए नदीम धनूरी, और इसी के साथ बेहतरीन शॉट ओवर बाउंड्री जोड़ते हुए दिखे हैं नदीम धनूरी। ये खिलाड़ी ना वो 1 मैन आर्मी बनते हुए सामने आए हैं पहले मुकाबले में, और आज के दिन का अगला मुकाबला बहुत सारे सुपरस्टार खिलाड़ी हम देख सकते हैं। ओमकार देसाई, संजू कनौजिया, केतन म्हात्रे सब तैयार है अगले मुकाबले के लिए, और अभिषेक कुमार डलहोर, करण अंबाला को भी देख सकते हैं। चलिए इसी के साथ चौका और ये मुकाबला खत्म हो चुका है। इस मुकाबले को जीतते हुए मैदान को छोड़ेंगे टीम FI Titans। मेनी कांग्रेचुलेशन टू द टीम FI Titans। बिल्कुल पहले मुकाबला का सिलसिला खत्म हो चुका है। नदीम का बल्ला बहुत बेहतरीन बोला है, और हम जाएंगे थोड़ा मैच समरी की ओर। बिल्कुल अगर हम दूसरे इनिंग्स की ओर नजर डालेंगे, नदीम 20 गेंद से 64 पर नाबाद हैं। थॉमस डायस 4 गेंद से 12 पर नाबाद। उस्मान पटेल इनका बल्ला बोला नहीं है, वो पहले मुकाबले